Good morning, students. Welcome to the class 9 online session of science. Now, in the previous class of chapter number 2, that is matter of pure, we were discussing about the certain substances, how we can be classified, the substance which is used from the market, is it a pure, that we were discussing in the previous class. Also, we are discussing about what is called physical changes, what is called chemical changes, what is called element, compound, what is called mixture, homogeneous and heterogeneous. That we are discussing in the previous class. Just I fastly revise this topic, then we are moving on to the two topics today, solutions in which colloidal suspension and true solution, and also we are discussing about the true solution and property. First we are discussing the fastly physical change and chemical change. Like, now physical change is what? Change in a form of physical, like it should be a physical state of matter. Like we are discussing about, it is a reversible, physical change is a reversible. You can convert, it is in an form to another form, and also you can be reversed back. For example, if we are discussing like sugar and water, that can be added in a form and we provide the heat, sugar and water, that can be bifurcated. Or maybe we can converted the liquid to solid, solid easily converted in the form of liquid. Okay, so that is generally a temporary and reversible substances which is called physical change. So if we convert it in a form to another form, you can also obtain in its original form. But in a chemical change is generally change in a state of its chemical substances. It is not reversible, it is a permanent. If you want converted the chemical substance in another form, you cannot be reversed back. So it is a irreversible substances and it is a permanent form. Like iron is generally available in the presence of oxygen of moisture, it generally converted in a rusting form of powder, that red brown color. So you cannot be reversed back to that rusting powder to the iron. So it is a part of the chemical changes. Also we are discussing about the element. Element is what? The French scientist Lavoisier who gave the properly definition about the element. Okay, French scientist Lavoisier is the first person who gave the proper definition about the element. Element cannot be split further into the another substances. Element is what? It cannot be split into the further substances, and all elements are generally bound up of the atoms only. Okay, each and every element have a specific properties like iron, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, hydrogen, as well as the calcium, magnesium, zinc, potassium. So these all are the elements having their individual property, all the elements having the specific properties. Till 92 elements are available into the nature, and later reversing the remaining 114 we have to obtain from the laboratory. Total 114 elements, in which 92 that can be obtained freely from the nature, and remaining that we can be obtained from the laboratory. Most of the elements are generally in a solid form, some of having a liquid form, and most of some of gaseous form. So all these three forms the substances which can be seen. So that is about the element. Now compound. Now two or more elements, ये सारे टॉपिक्स पहले डिस्कशन किए इसलिए फटाफट समझा रहा हूँ. Two or more elements that can be combined, and the elements which is generally having in a fixed ratio of weight. कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं, मोर देन वन एलिमेंट्स दैट कैन बी एडेड, एंड दिस सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट हैविंग द फिक्स्ड वेट ऑफ वॉल्यूम. उनका जो वॉल्यूम और वेट होता है दैट शुड बी फिक्स. उसके अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, उसको उसके अंदर ऐड करते हैं और उसमें से नए सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं. तो सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्टेन एज अ पार्ट ऑफ द मोर देन वन सब्सटेंसेस इज द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वेट, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन. इसको आप क्या कहते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन. इसके अंदर जो दो सब्सटेंसेस आप ऐड करते हैं या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, दोनों अपने फिक्स रेशियो ऑफ वेट के अकॉर्डिंग टू ऐड होते हैं और उस पर से एक नया कंपाउंड हमें मिलता है. जैसे आप H2O देखिए, वाटर बनता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, NO2 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है. ये सारे सब्सटेंसेस जो है कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट को आप ऐड करते हो इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. लेकिन इसमें जो ऐड आप करते हो ना, उसकी प्रॉपर्टी पूरी अलग हो जाती है. अभी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ हैविंग देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, लेकिन जैसे अपन दोनों को ऐड करते हैं तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है इट हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टी. सो वट एवर द सब्सटेंस एज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट विच कैन बी एडेड having the specific different property, it cannot be maintain their original property in that compound. So that is called as a compound. Next हमने डिस्कशन किया था मिक्सचर के बारे में. मिक्सचर में मैंने आपको समझाया था in a mixture that contain two or more than two compounds or two more than two elements
हैविंग अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ मेंटेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। मिक्सचर के अंदर एक स्पेसिफिक फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो आप सब्सटेंस जो आप ऐड करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कंपाउंड को आप जब ऐड करते हैं तो वो जो कंपाउंड होता है इस मिक्सचर के अंदर अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखता है। जैसे अभी कंपाउंड के अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया था H2O का, वाटर जो बनता है वो कंपाउंड है, लेकिन वाटर के अंदर आप देखो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है, वो दोनों मिक्स होकर लिक्विड बन रहे हैं, लेकिन दोनों अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करते हैं, इसीलिए वो कंपाउंड है। लेकिन मिक्सचर के अंदर जो कंपाउंड आप ऐड करते हैं वो कंपाउंड क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को उसके अंदर मेंटेन करके रखते हैं, इसीलिए आप उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे सब्सटेंसेस। जैसे एयर क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिक्सचर। एयर के अंदर आप देखो बहुत तरह के सब्सटेंसेस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, बहुत तरह के ऐसे सब्सटेंसेस हैं, पर ये सारे जो गैसेज हैं अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके रखते हैं और अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं, इसीलिए आप इसको मिक्सचर के फॉर्म में कंसीडर करते हो। मिक्सचर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अभी मिक्सचर के अंदर होमोजेनियस हेट्रोजेनियस क्या होता है, देखिए मिक्सचर के अंदर जो आप सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, मिक्सचर द सब्सटेंसेस विच इज एडेड, जो सब्सटेंस आप उसके अंदर ऐड करते हैं, एंड दैट शुड बी फिजिकल फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस दैट शुड रिमेन सेम, और आप उसके अंदर मिक्स करने के बाद यू कैन नॉट बी सी द टू सेपरेट लेयर, इट इज कॉल्ड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे आप देखिए, जैसे शुगर है सॉल्ट, या शुगर या आप उसके अंदर दूसरा फॉर्मेशन में वाटर है ना, तो वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट को आप ऐड करते हैं तो आप देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर वो पूरा का पूरा फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो जाता है। यू कैन नॉट बी सी दैट शुगर एंड सॉल्ट विच इज अवेलेबल इनटू द वाटर, सो इट इज कॉल्ड एज अ होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें जिस सब्सटेंसेस को आप ऐड करते हैं वो पूरा सब्सटेंसेस फिजिकल फॉर्म में कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। यू कैन नॉट बी सी द टू सेपरेट लेयर और टू सेपरेट सब्सटेंस जो आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं ना, यू कैन नॉट बी सी द टू सेपरेट सब्सटेंस कि उसमें आपने क्या ऐड किया है, तो वैसे मिक्सचर को आप होमोजेनियस मिक्सचर कहते हो। ठीक है, जैसे मिल्क के अंदर आप शुगर को ऐड कर दो, यू कैन नॉट बी सी द शुगर विच इज अवेलेबल इनटू द वॉट मिल्क, तो ये भी क्या हो गया, आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस कैन बी सीन डिफरेंटली, आप जो सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं ना, दैट कैन बी सीन द सेपरेट लेयर, यू कैन सी डिफरेंटली, जो सब्सटेंसेस आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं ना, यू कैन सी क्लियरली कि इसमें क्या सब्सटेंसेस आपने ऐड किया है, तो वैसे मिक्सचर को आप क्या कहते हो, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हो। अभी आप मार्केट में जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं फर्शन वाले के, वहाँ से अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस आप मिक्स करते हैं, तो यू कैन सी सेपरेटली इसमें आपने क्या क्या मिक्स किया है, तो वैसे सब्सटेंसेस को आप हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहोगे। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे नेल है, NaCl है, NaCl यानी कि आपका सॉल्ट हो गया, सॉल्ट के ऊपर आप आयरन का पाउडर डाल दीजिए, सॉल्ट और आयरन पाउडर को आप मिक्स कीजिए, यू कैन सी सेपरेटली कि सॉल्ट और आयरन पाउडर आपको क्लियरली दिखेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, तो वैसे सॉल्यूशन को आप हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हो। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कशन किया हुआ था प्रीवियस क्लास के अंदर। आज जो हमें डिस्कशन करना है वो दो टॉपिक है, जो है सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले तो हमें समझना है कि सॉल्यूशन क्या है, उसमें भी तीन मेथड मैंने समझाई आपको कि सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, कॉलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। तो पहला थिंग है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आप उसके अंदर ऐड करते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर इन विच मोर देन टू सब्सटेंसेस दैट कैन बी एडेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लेमन वाटर बनाते हैं घर के अंदर, लेमन वाटर बनाते हैं तो लेमन के अंदर क्या, लेमन वाटर बनाने में आपको शुगर या सॉल्ट चाहिए, लेमन चाहिए और वाटर चाहिए, तो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आप होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर ऐड करते हैं, तो वो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको आप सॉल्यूशन कहते हो। तो सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर, जिसके अंदर आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को ऐड करते हो। अभी इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जैसे आप देखो, इस सॉल्यूशन के अंदर दो सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो सब्सटेंसेस खास होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, फॉर एग्जांपल केमिकल सॉल्यूशन के अंदर आप जो सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हैं, तो आप जब एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे तो कोई सब्सटेंसेस लार्जर प्रोपोर्शन में होगा, कोई सब्सटेंसेस स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ प्रोपोर्शन के अंदर होगा। तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो सब्सटेंसेस
केमिकल सॉल्यूशन के अंदर लो प्रोपोर्शन ऑफ क्वांटिटी के अंदर होगा वो सॉल्यूट होता है, और जो हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोपोर्शन के अंदर होगा वो सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप लेमन वाटर बना रहे हैं तो या मिल्क के अंदर आप शुगर को ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क जो है वो लार्जर क्वांटिटी में है, शुगर आप 1 स्पून डालते हैं तो कम क्वांटिटी हो गई, तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो अगर केमिकल सॉल्यूशन के अंदर देखें तो लेस क्वांटिटी और उसी तरह जो सॉल्यूट होता है और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे लेमनेड के अंदर आप लेमनेड लेमन जो आप यूज़ करते हो लेस क्वांटिटी में, इसीलिए आप उसको क्या कहोगे, सॉल्यूट कहोगे, और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप उसको सॉल्वेंट कहोगे। और ये दोनों का जो मिक्सचर होता है जिसको आप लेमनेड या लेमन वाटर कहते हैं उसको आप सॉल्यूशन कहोगे। इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ लेमन। तो अगर वाटर के अंदर आप लेमन ऐड करते हैं तो लेमन का सॉल्यूशन मिलेगा, NaCl ऐड करते हैं तो सॉल्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, अगर शुगर ऐड करते हैं तो शुगर का सॉल्यूशन मिलेगा। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर जो सॉल्यूट आप ऐड करते हो यानी कि जिसकी प्रोपोर्शन कम होती है उसका सॉल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आप ऐड करते हो, और वो सॉल्यूशन के अंदर जो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें लो क्वांटिटी ऑफ प्रोपोर्शन होता है वो सॉल्यूट होता है, और हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोपोर्शन होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो उसके हिसाब का आपको सॉल्यूशन मिलता है। अगर आप वाटर के अंदर लेमन ड्रॉप ऐड कर रहे हो तो लेमनॉइड का सॉल्यूशन मिलेगा, वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहे हो तो शुगर का सॉल्यूशन मिलेगा, और वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो सॉल्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो सॉल्यूशन हो गया। पर सॉल्यूशन के अंदर 3 अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है कॉलाइडल सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, और एक होता है ट्रू सॉल्यूशन। अभी कॉलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, पहले हम डिस्कशन करते हैं कॉलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कॉलाइडल सब्सटेंसेस क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कॉलाइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस। कॉलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉलाइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस आप ऐड करते हो उसके जो पार्टिकल्स की जो साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिटवीन, जो होता है वो क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर होता है, इसको आप सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। तो बिटवीन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज जनरली अ पार्ट ऑफ अ कॉलाइडल सॉल्यूशन। तो कॉलाइडल जो है इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, कॉलाइडल जो है उसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉलाइडल इज नॉट अ कंप्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर। कॉलाइडल जो है इज नॉट अ कंप्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर, इसको आप सॉल्यूशन नहीं कह सकते हो, पर एक कॉलाइडल का पार्ट है इसलिए आप उसको सॉल्यूशन में कंसिडर करते हो। तो कॉलाइडल इज अ पार्ट ऑफ मिक्सचर, आप उसको मिक्सचर में कंसिडर करोगे। तो कॉलाइडल इज अ पार्ट ऑफ मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिटवीन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नंबर्स, जिसका साइज ऑफ पार्टिकल्स उसके काफ़ी लार्जर होते हैं। तो इट इज़ नॉट अ कंप्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स आप उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं ना वो आपको दिखता नहीं है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन कॉलाइडल के अंदर के जो पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो थोड़ी सी लार्जर होती है, तो अगर आप उसके अंदर ऐड करने जाओगे तो आपको पार्टिकल्स दिखेगा, तो इसलिए उसको कंप्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर आप नहीं कह सकते हो। इट इज कॉलाइडली इज नॉट अ मिक्सचर, इट इज़ अ मिक्सचर नॉट अ सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल जैसे शॉप है, शॉप का जो सॉल्यूशन होता है, जो बाथिंग शॉप है या वॉशिंग शॉप है, ये जो शॉप का जो एग्जाम्पल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉलाइडल। शॉप का जो सॉल्यूशन होता है उसको आप कॉलाइडल सॉल्यूशन या कॉलाइडल मिक्सचर कह सकते हो। तो कॉलाइडल सॉल्यूशन जो है इट इज़ लाइक अ मिक्सचर इन विच जो पार्टिकल्स उसके अंदर आप ऐड करते हो उसकी साइज जो होती है काफ़ी लार्जर होती है, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व और आयोनाइज इनटू द सॉल्यूशन, बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द होमोजेनियस मिक्स सॉल्यूशन, इसलिए आप इसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो जो शॉप का सॉल्यूशन होता है वो क्या हो गया, आपका कॉलाइडल हो गया। दूसरा होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन, देखो पूरा जो सॉल्यूशन होता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। कॉलाइडल के पार्टिकल की साइज थोड़ी सी ग्रेटर होती है, सस्पेंशन की थोड़ी सी उससे छोटी होती है, ट्रू की उससे छोटी होती है। तो जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज और डिसॉल्व हो जाते हैं उसके हिसाब से हम इसको बाइफरगेट करते हैं। तो कॉलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन इज लाइक अ होमोजेनियस मिक्सचर। देखो अभी मैं खाली ओरली स्लाइडली समझा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में समझाऊंगा कॉलाइडल क्या है, सस्पेंशन क्या है, ट्रू क्या है। अभी खाली जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है,
होमोजेनियस मिक्सचर का ही है, इन विच जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होती है ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इट। अभी सस्पेंशन सॉल्यूशन इज एक्ट एज अ होमोजेनियस, वो होता है होमोजेनियस जैसा, लेकिन होता क्या है, वो हेट्रोजेनियस होता है। सस्पेंशन सॉल्यूशन इज लाइक अ होमोजेनियस सॉल्यूशन बट एक्ट लाइक अ हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। इसके जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड, ये क्या होता है, स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इट, उस डिजॉल्व हुए बगैर वो हर जगह पे स्प्रेड आउट होते हैं। जैसे आप वाटर के अंदर आप सैंड को मिक्स करो, जैसे वाटर का सॉल्यूशन है, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सैंड को मिक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि सैंड जो है उस वाटर के अंदर लिक्विडली कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिजॉल्व होता है, लेकिन वो क्या हो सकता है आपका, उसको आप कह सकते हो सस्पेंशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम 2 मार्क्स में काफ़ी हम पूछते हैं कि व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज आप समझाइए। तो अभी हम देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, द सॉल्यूशन इन विच, जिस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल्स एट सॉलिड विच इज इंटरेक्ट एट द मॉलिक्यूल लेवल ऑफ पार्टिकल्स, जिस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का पार्टिकल्स यानी आप जो ऐड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, ओके, और पार्ट में उसके बाद सॉल्वेंट आता है, ठीक है। तो इन अ सॉल्यूशन द पार्टिकल्स विच वी हैव टू बी सॉल्यूट, और वो इंटरेक्ट किससे होता है, इंटरेक्ट होता है आपका मॉलिक्यूल लेवल विथ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के पार्टिकल से मॉलिक्यूल लेवल पे अगर वो इंटरेक्ट करता है तो उसको आप ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसॉल्व हो जाए। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो आप ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के अंदर, अगर वो दोनों मॉलिक्यूल लेवल पे अगर इंटरेक्ट करते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या कह सकते हो, ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हो। ट्रू सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। जैसे वाटर के अंदर आप सॉल्ट को ऐड करो या वाटर के अंदर आप शुगर को ऐड करो, इसके जो सॉलिड और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो कंप्लीटली मॉलिक्यूल लेवल पे इंटरेक्ट करेंगे और कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, इसीलिए आप इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हो। और इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होती है उसकी साइज काफ़ी स्मॉलर होती है। तो ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। अभी हम डिस्कशन करते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या। देखो प्रॉपर्टीज़ जो है अलग अलग सॉल्यूशन की अलग अलग होती है, तो पहले हम ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वह आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं इसके पार्टिकल्स। तो ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अभी इसका जो पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है सॉल्यूशन का वो लेस देन 1 नैनोमीटर का होता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1/10⁻⁹ मीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। तो इतनी स्मॉलर साइज उस पार्टिकल्स की होती है। सो this type of particles cannot be seen by naked eyes. You cannot be see this type of particles through your naked eyes since the particles of these solutions are very small. अभी true solution के particles काफ़ी small होते हैं, so they cannot be scattered by passing out the light. You cannot be see the two separate beams or path by passing the light, so you cannot be seen the light. अभी जैसे example देता हूँ, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो जैसे आप उस पर से लाइट और बीम पास करोगे उस सॉल्यूशन में से, तो आपको शुगर और वाटर अलग दिखेगा, यू कैन नॉट बी सी, क्योंकि इससे साइज ऑफ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं तो यू कैन नॉट बी सी योर नेक्ड आइज। तो वैसे सॉल्यूशन जो होता है ट्रू सॉल्यूशन। अभी इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है कैन नॉट बी स्टेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ द फिजिकल मेथड। आप इसको फिजिकल मेथड से या फिल्टरिंग मेथड से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज द हाईली स्टेबल सॉल्यूशन, हाईली स्टेबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस मेथड को फिल्टरिंग मेथड से भी अलग कर सकते हो। ये हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी। फिर से मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ट्रू सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट दे कैन बी इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल लेवल एंड कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू सॉल्यूशन।
अभी ट्रू सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर. For example, if we add sugar into the water or if we add salt into the water, it is completely ionized and dissolved. So this is called true solution. अभी ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर का पार्ट है. इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉलर होते हैं, जिसकी साइज 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर अप्रोक्सीमेट होती है. ये इतने स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, वी कैन नॉट बी सीन थ्रू अवर नेक्ड आइज. अगर इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर लाइट ऑफ बीम को अगर आप पास आउट करते हो तो यू कैन नॉट बी सी द स्कैटर्ड ऑफ पार्टिकल्स. अलग अलग आपको डायरेक्शन नहीं दिखेगा. यू कैन, अगर आपको इसको अलग करना है तो बाय फिल्टरिंग मेथड से आप इसको अलग कर सकते हैं और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं. ये हो गया. अभी दो अलग अलग एग्जाम्पल आए जिससे भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि लाइट ऑफ बीम पास करने पर दो सेपरेट पाथ हमें कैसे दिखेंगे. देखो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है ना, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो सॉल्यूशन आप ऐड करते हो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसॉल्व हो जाता है, तो आपको नहीं पता चलेगा उसमें आपने क्या ऐड किया है. ठीक है. लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें आप सॉलिड को ऐड करोगे तो आपको दो अलग अलग लेयर दिखेंगे. जैसे लाइट ऑफ, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको. वाटर है, वाटर के अंदर अगर आप ऑयल को ऐड करो, 2 बूंद ऑयल या 4 बूंद ऑयल डाल दो. ऑयल क्या होता है? इट इज़ अ वेरी लाइटर देन वाटर. वाटर से भी काफ़ी लाइट वेटेड होता है ऑयल. ऑयल का सरफेस हमेशा वाटर के ऊपर होगा. तो जैसे आप लाइट ऑफ बीम मारोगे उस पर तो आपको दिखेगा कि ऑयल का सरफेस अलग है, वाटर का सरफेस अलग है, तो 2 सेपरेट लेयर आपको दिखेंगे, तो वो हेट्रोजेनियस होता है. तो होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर इस तरह के पाथ आपको नहीं दिखेंगे जिसके मॉलिक्यूल्स लेवल पे वो इंटरेक्ट करके वो काफ़ी हाईली स्टेबल हो जाता है. तो दैट इज अबाउट द सॉल्यूशन. तो आज मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया. दैट इज अबाउट व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, व्हाट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के अंदर इसमें कॉलाइडल क्या, सस्पेंशन क्या और ट्रू सॉल्यूशन क्या, और ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है. कल हम डिस्कशन करेंगे, तो आगे हम डिस्कशन करेंगे एलॉयज के बारे में. एलॉयज के अलावा हम डिस्कशन करेंगे इन सारे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में, कि कॉलाइडल सॉल्यूशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना. उसके बाद हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है. दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स वी डिस्कसिंग टुमारो. केवल आज इतना ही आपको मैं समझा रहा हूँ कि मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है और कैसे इसका प्रॉपर्टीज में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो आज इतना. कल जब मिलेंगे तो बाकी के टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे. चलिए, ओके, बाय.